اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 68۔ مکمل عاقل اور آدھے عقل مند اور مکمل انسان اور آدھے انسان کی علامت اور بے وجود مغرور بدبخت کی علامت۔ کامل عقل مند وہ ہوتا ہے جو نور باطن حاصل کر لے، وہ دوسروں کا پیشوا بنے اور اپنے نور کا تابع اور پیرو ہو۔ یہ مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے اوپر ایمان لائیں اور اپنی نبوت کی تصدیق کریں۔ نیم عاقل وہ ہے جو کسی صاحب نور کو اپنی آنکھ بنا لے اور ہر چیز کو اس کی آنکھ سے دیکھے، ہر معاملے میں اس پر ایسا اعتماد کرے جس طرح ایک اندھا اپنے رہنما پر کرتا ہے۔ تیسرا وہ ہے جو نرا گدھا ہے، جس کو نہ خود نور حاصل ہے اور نہ کسی کو رہنما بنائے، خود غفلت میں غرق ہے اور دوسرے کو رہنما بناتے وقت ذلت محسوس کرتا ہے۔ یہ تیسرا شخص اوہام اور خیالات کی وادیوں میں سرگرداں رہتا ہے، اس کو خود تو نور باطن حاصل نہیں ہے اور اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے سے نور حاصل کر لے۔ اگر کوئی مردہ بن کر اپنے آپ کو کسی عقل مند کے سپرد کر دے تو بھی بام عروج پر پہنچ جائے گا۔ احمق انسان نہ خود زندہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کے دم میں اثر ہو، اور نہ مردہ ہے کہ کسی عیسیٰ علیہ السلام نفس کے دم سے زندہ ہو جائے۔ کچا انگور نہ کھانے کے قابل ہے اور نہ اس سے شراب بن سکتی ہے۔ احمق انسان اوہام میں پھنسا رہتا ہے، عاقبت کی فکر نہیں کرتا، پھر ایسے وقت فکر کرتا ہے جب کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا ہے۔ بے وقت ندامت مفید نہیں ہوتی۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 69۔ تالاب، شکاریوں اور 3 مچھلیوں کا قصہ اور ان کا انجام۔ ایک تالاب میں 3 موٹی نادر مچھلیاں رہتی تھیں۔ ان مچھلیوں میں سے جو عقلمند تھی اس نے شکاریوں کے ارادہ کو بانپ کر سفر کر جانے کا ارادہ کر لیا، اور وہاں سے چل دی کہ پیدائش اور قیام کی محبت کہیں مجھے میرے ارادے میں سست نہ کر دے اور میں پکڑی جاؤں۔ دوسری دونوں مچھلیاں اس کے ساتھ نہ گئیں اور پکڑی گئیں۔ اپنے مستقبل کے بارے میں کسی اہل سے مشورہ کر لے، اس وطن یعنی دنیا کی محبت کے دھوکے سے نکل جا۔ اگر تو وطن چاہتا ہے تو اس حدیث کو سمجھ لے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 70۔ اس حدیث کا راز کہ وطن کی محبت ایمان ہے، اور ایک شخص کا ناک میں پانی دینے کے وقت کی دعا کو بے موقع پڑھنا، جو کہ اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے، استنجے کی دعا کی جگہ جو کہ ہے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کر دے اور مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں کر دے۔ ایک دوست کا سننا اور صبر نہ کر سکنا اور بتانا۔ اس حدیث میں وطن سے مراد آخرت ہے اور دنیا کا وطن مراد نہیں۔ دنیا کا مطلب وطن سمجھ کر دھوکہ نہ کھانا۔ ہر دعا کا ایک محل ہے، اس کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حب وطن کو غلط مقام پر استعمال نہ کرنا چاہیے۔ بزرگان دین وضو میں ہر عضو کو دھوتے وقت ایک خاص دعا پڑھتے تھے۔ جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو دعا کرتے ہیں، اے خدا مجھے جنت کی خوشبو سنگھا دے۔ پھول کی خوشبو چمن کے لیے رہنما ہے، اسی طرح جنت کی خوشبو جنت کی رہنما ہے۔ پخانے سے نکلتے وقت کی دعا ہے کہ اے اللہ نجاست ظاہر کا ازالہ تو مجھ سے ممکن تھا اور وہ میں نے کر لیا، لیکن باطنی نجاست تو خود ہی پاک کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہی کر سکتی ہے کہ وہ روح کو پاک کر دے۔ انسان کا مقدور یہی ہے کہ وہ نجاست ظاہری سے پاکی حاصل کر لے۔ نجاست ظاہری کی حد سے آگے کی پاکی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک آدمی نے استنجے کے وقت وہ دعا پڑھی جو ناک میں پانی دینے وقت کی ہے۔ جس طرح یہ بے محل دعا ہے، اسی طرح یہ بھی بے محل بات ہے کہ انسان احمقوں کے سامنے تواضع برتے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں سے اکڑے۔ یاد رکھو، انسان کی الٹی چالیں اس کی رفت اور بلندی کے لیے مانے ہیں۔ پھول کی خوشبو دماغ کے لیے ہے اور پخانہ کے سراغ سے جنت کی خوشبو محسوس نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح وطن کی محبت درست ہے، لیکن پہلے وطن کو پہچان۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 71۔ عقل مند کا دنائی سے دوسروں سے مشورے کیے بغیر
रवाना हो जाना। मछली ने सोचा कि इस रास्ते के महरम नायाब हैं, इसलिए खामोशी से रात को निकल जाना चाहिए। सालिक को भी यही सोचना चाहिए और राह सलूक की मुश्किलात को खुद ही बर्दाश्त करना चाहिए। ये महदूद दुनिया छोड़कर लामहदूद उकबा इख्तियार करनी चाहिए। वो तेजी से भागी, रास्ते की तकलीफ बर्दाश्त की और अपने आप को दरियाए नापैदा किनार में ले जा डाला। शिकारी पीछे हो और फिर गफलत की नींद सोना बड़ी गलती है। शिकारी जब जाल लेकर आए तो नीम आकिल मछली को फिक्र हुई। उसने सोचा, अफसोस, मैंने वक्त जाया किया और अक्लमंद मछली के पीछे न चली गई। अब भी मुझे चल देना चाहिए। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता, ताकि अपनी गलती की तिलाफी हो सके। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 72। एक फंसे हुए परिंदे की हिकायत कि गुज़िश्ता पर पशेमान ना हो, नामुमकिन बात का यकीन न कर, मौजूदा वक्त की इस्लाह और पशेमानी में वक्त ज़ाया ना कर। गुज़िश्ता बात पर अफसोस करना वक्त को ज़ाया करना और लुग़व बात है। एक शिकारी ने एक परिंद फांस लिया। परिंदे ने कहा कि अगर तू मुझे ज़िबा करके खा भी जाएगा तो क्या फ़ायदा होगा। तू बहुत बड़े बड़े जानवर खा चुका है और उनसे तेरा पेट नहीं भरा, तो मुझे खाकर तेरा क्या फ़ायदा होगा। तू मुझे आज़ाद कर दे तो मैं तुझे 3 नसीहतें करूँगा। मैं पहली नसीहत उस वक्त करूँगा जब तू मुझे हाथ में पकड़ेगा, दूसरी उस वक्त करूँगा जब तू मुझे छोड़ देगा, और तीसरी उस वक्त करूँगा जब मैं दरख्त पर जा बैठूँगा। तेरे हाथ में जो नसीहत करनी है वो ये है कि अगर कोई तुझे नामुमकिन और महाल बात कहे तो उस पर यकीन न करना। उसके बाद परिंदे ने कहा कि मेरे पोटे में एक नादिर मोती है जो 3 तोले का है। अगर तू मुझे ज़िबा करता तो ये मोती तेरी दौलत होता, चूंकि तेरा मुकद्दर नहीं है, इसलिए वो मोती तेरे हाथ न आया। परिंदे की इस बात को सुनकर शिकारी इस तरह आहो फरियाद करता था जिस तरह हामिला औरत बच्चा जनते वक्त करती है। वो परिंदे की इस गुफ्तगू पर गमगीन होकर आहो जारी करता था। वो बोला, ऐ परिंदे, तूने हीलाबाजी करके मुझे तबाह कर दिया, वरना मैं मोती से दौलतमंद हो जाता। परिंदे ने जवाब दिया, मैंने तुझे नसीहत की थी कि गुजरी हुई बात पर अफसोस न करना, तो अब अफसोस क्यों करता है। मैंने दूसरी नसीहत ये की थी कि किसी नामुमकिन बात पर यकीन न करना। तूने मेरी नामुमकिन बात पर यकीन कर लिया और ये ना सोचा कि छोटे परिंदे के पोटे में 3 तोले का मोती कैसे हो सकता है। जब शिकारी को कुछ सुकून हुआ तो उसने पूछा कि तीसरी नसीहत भी सुना दे। परिंदा बोला, तूने 2 नसीहतों पर खूब अमल किया है, जो तुझे तीसरी नसीहत भी सुनाकर ज़ाया कर दूं। उसके इस जवाब में तीसरी नसीहत भी मुज़मिर है कि जो नसीहत कबूल न करे उसको नसीहत ना करो। परिंदे ने तंज़न तीसरी नसीहत भी कह दी और उड़कर जंगल में चला गया। जाहिल को नसीहत करना ऐसा ही है जैसे शोर ज़मीन में बीज बोना। मुकम्मल अक्लमंदी तो यही है कि कबल इस मुसीबत दफिया की तदबीर कर ले। नीम अक्लमंदी यह है कि मुसीबत के वक्त ही निजात की सही तदबीर करे। अक्लमंद मछली के चले जाने के बाद नीम आकिल ने सोचा कि वो क्यों अच्छे साथी से छूट गई। अब अफसोस करने में वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं है। मैं ये तदबीर करती हूँ कि अपने आप को मुर्दा बना लूंगी। हदीस शरीफ में है कि मूतु कबला अन तमूतु, यानी निजात इसी में है कि मरने से पहले ही फना का दर्जा इख्तियार कर लो। मकाम फना इख्तियार न करोगे तो फितनों में मुब्तला होकर मरोगे। वो मुर्दा बन गई तो शिकारी ने उसको अलग जमीन पर फेंक दिया तो वो लौटती पौड़ती फिर दरिया में घुस गई। तीसरी बेअकल मछली ने उछल कूद शुरू कर दी। उसकी ये कोशिश बेवकत थी। शिकारी ने उसको जाल से पकड़ लिया ताकि उसके कबाब बनाए। अक्ल उस पर तंज कर रही थी कि क्या तेरे पास तुझे अजाब से डराने वाले ना आए थे। वो कह रही थी कि बेशक डराने वाले आए थे, लेकिन मैंने उनका कहना न माना। वो अपने दिल में कह रही थी कि अब अगर जिंदगी हासिल हो जाए तो किसी अक्लमंद का दामन जरूर पकड़ूंगी। ये हाल उन लोगों का है जो दुनिया में बेअक्ली करेंगे और नसीहत ना सुनेंगे। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 73। अहमक का गिरफ्तारी के वक़्त ऐद करना और नादिब होना हरगिज मुफीद नहीं, क्योंकि कोई झूठा वफा नहीं करता।
अहमकों के वादों और दावों का एतबार नहीं है। कुरान में है कि अगर उनको दोबारा जिंदगी भी दे दी जाए तो ये बदअहदी करेंगे। अहदों की वफा करना तो अक्ल वालों का काम होता है। परवाने में अक्ल की कमी है, जिसकी वजह से शमा की आग की सोजिश उसको याद नहीं आती। उसकी हिर्स और भूल उसे जला देती है। जब्त का मादा समझ, निगहदाश्त और यादाश्त अक्ल की वजह से होते हैं। इंसान की अक्ल उसको उसका अहद याद दिलाती है। उसकी बेअक्ली यह है कि वो अपनी हिमाकत के आसार को नहीं समझता। इंसान की नदामत तकलीफ की वजह से थी। तकलीफ खत्म हुई तो नदामत भी खत्म हो जाती है। इसलिए उसकी तौबा और नदामत की कोई कदर व कीमत नहीं है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 74। इसका बयान के वहम अक्ल का खोटा सिक्का और उसका मुखालिफ है और उसके मुशाबा है और वो नहीं है। शाहते नफसानी अक्ल की जिद है। अक्ल उसकी तरफ माइल नहीं हो सकती। जो नफसानी ख्वाहिश की तरफ माइल हो वो अक्ल नहीं, वहम है। वहम भी सिक्का है लेकिन खोटा। अक्ल खरा सिक्का है। कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक की कसौटी पर परखने से दोनों में इम्तियाज हो सकता है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 75। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो अक्लमंद थे, फिरौन के साथ सवाल जवाब जो वहमी था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे और उस वक्त वो मकाम फना में थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अक्ल मुजस्सिम हूं, अल्लाह की दलील और लोगों को गुमराही से बचाने वाला हूं। फिरौन ने कहा कि मैं ये बातें सुनना नहीं चाहता। तू अपना कदीम नाम और नसब बता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा नसब तो यह है कि मैं खाक ज़ादा हूं। मेरा नाम अल्लाह का कम तरीन गुलाम है और मैं अल्लाह के गुलामों और लौंडियों की पुश्तो बदन से पैदा हुआ हूं। मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आबो गिल से पैदा फरमाया था और फिर उसे जानो दिल अता किए थे। मेरा खाकी जिस्म फिर खाक हो जाएगा और तुझ जालिम के जिस्म को भी खाक में मिलना होगा। तमाम इंसानों की असल आबो गिल है और उसकी 100 इलामतें हैं। पहली इलामत यह है कि इंसान जमीन की पैदावार से खुराक हासिल करता है और उसी से परवरिश पाता है। दूसरी निशानी यह है कि सबको मरकर खाक में मिल जाना है और तुझे भी खाक में जाना है और तेरा ये इकबाल फानी है। फिरौन ने गुस्से से कहा कि तेरा एक और नाम है और वो ज्यादा मुनासिब है और वो है फिरौन का गुलाम। फिरौन के गुलामों को गुलाम यानी उस गुलाम की जान और जिस्म को फिरौन ही ने परवरिश किया। तू गुलाम तो है मगर बागी और सरकश, और तू वही गुलाम है कि एक जुर्म करके मिस्र से भागा था, यानी एक किबती को कत्ल किया है। चूंकि तूने मेरे हकूक अदा नहीं किए इसलिए परदेश में मारा मारा फिरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा का कोई शरीक नहीं है, वो वाहिद है और उसे किसी मददगार की जरूरत नहीं है और अपने बंदों का तन्हा खुदा है। जो उसकी शिरकत का दावा करेगा तबाह हो जाएगा। उसने मेरी सूरत को बनाया है, अगर कोई दूसरा दावा करे तो वो जालिम है। तू मेरा खुदा कैसे हो सकता है? तू मेरी एक अबरो भी नहीं बना सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गद्दार मैं नहीं हूं बल्कि तू अल्लाह का गद्दार है। मुझसे किबदी का कत्ल बिला इरादा हुआ था। वो काफिर था, उसकी जान तो जान ही ना थी। तूने हजारों बेकसूर औलाद याकूब अलैहिस्सलाम को कत्ल किया है। इसकी सजा में तू तरह तरह के अजाब भुगतेगा। अल्लाह ने तेरी मर्जी के खिलाफ मुझे अपनी रिसालत के लिए मुंतखब किया। फिरौन कहने लगा कि इन बातों को छोड़, क्या मेरे हुकूक का यही तकाजा है कि तू मुझे बरसरे मजमा जलील करता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तू खैर व शर में मेरी इत्तिबाह ना करेगा तो क़यामत में जलील होगा और वो जिल्लत इस दुनिया की जिल्लत से बहुत सख्त है। यहां तू एक मच्छर के काटने को बर्दाश्त नहीं करता तो क़यामत में सांपों का जहर कैसे पिएगा? जाहिरन जिसको तू बर्बादी समझता है उसमें ही तेरी आबादी है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 76।
तामीर तखरीब में, दिल जमी परेशानी में, दुरुस्त की शिकस्तगी में, मुराद बेमुरादी में, और वजूद अदम में है का बयान। इसी तरह जिद्दों और जोड़ों का क्यास कर लो। एक शख्स ने जमीन को खोदना शुरू किया। एक बेवकूफ बोला, तू हल चलाकर जमीन क्यों खराब कर रहा है? उसने कहा, ऐ अहमक, जा पहले तामीर और तखरीब में फर्क समझ। चमन और खेत तब ही तैयार होता है जब पहले जमीन को खूब वीरान किया जाए। जख्म को नश्तर से न छेड़ें तो जख्म कैसे अच्छा होगा? दर्जी कपड़े को काट कर टुकड़े न करे तो लिबास कैसे तैयार हो? नई तामीर करनी हो तो पुरानी बुनियादों को उखाड़ना ही पड़ता है। सब कारीगरों का यही अमल है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 77। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का फिरौन को जवाब देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे हुकूक का यही तकाजा है कि मैं तुझे हलाकत से निजात दिला दूं। अगर तू मेरी नसीहत को कबूल करेगा तो अबदी हलाकत से निजात पा जाएगा। तूने अपने नफ्स को, जो कि एक मामूली कीड़ा था, उसे अजदहा बनाकर अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है। इसके मुकाबले के लिए मैं अपने असा का अजदहा लाया हूं। मेरा सांप तेरे अजदहे को बर्बाद कर देगा। अगर तू राजी हो गया तो दोनों सांपों से बच जाएगा, वरना तेरी हलाकत है। फिरौन ने कहा, तू मुकम्मल जादूगर है। तूने अपने मकर और जादू से मेरी कौम में इख्तिलाफ पैदा कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा हूं। जादूगर अपने अमल में अल्लाह के नाम का सहारा नहीं लेता, वो जादू में शैतान का नाम इस्तेमाल करता है। आसमानी किताबों में मेरा जिक्र किया गया है, मुझ पर वही नाजिल होती है। जादूगर को वही से क्या वास्ता? तू खुद जैसा है मुझे भी वैसा ही समझ रहा है। इंसान जैसा खुद होता है दूसरों को भी वैसा ही समझता है। इंसान हमेशा अपनी हालत पर दूसरों को कयास करता है। जिसका अपना सर चकरा रहा हो वो घर को घूमता हुआ समझता है। कश्ती में बैठा हुआ इंसान समझता है कि साहिल पीछे को चल रहा है। अगर इंसान तंग दिल होता है तो दुनिया को तंग समझता है। अगर खुश होता है तो उसे तमाम दुनिया पुरमुसर्रत मालूम होती है। इस्लाम के मरकज में भी मुनाफिक व कुफ्र और निफाक ही नजर आएगा। इंसान जिस चीज की जुस्तजू करता है वही उसको नजर आती है। जो शख्स बातनी बसीरत से खाली और जाहिर भी है, उसको तमाम आलिम में सिर्फ जाहिर नजर आएगा। बैल अगर बगदाद में भी पहुंचेगा तो वहां भी उसको खरबूजों के छिलकों के अलावा कुछ नजर ना आएगा। असबाब जाहिरी का पाबंद इंसान सिर्फ अपनी तबीयत पर एतमाद करता है। असबाबो इलल से गुजरकर जब इंसान उस मुकाम तक पहुंचता है जहां मुसब्बबुल इसबाब की कुदरत का अमल जारी है, तो उसको एक वसी मैदान मिलता है। उस मुकाम पर पहुंचकर तजद्दुद इमसाल के तरीका पर इसको नए आलिम नजर आते हैं। इंसान की गफलत है कि वो असबाब की तरफ नजर रखता है और सबब पैदा करने वाले से गाफिल है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 78। हवास के मुदरिकात अलग अलग होते हैं। इंसान के हर हिस्स के मुदरिकात जुदा गाना है। एक हिस्स दूसरे हिस्स के मुदरिकात से बेखबर है। इंसान अपनी ऐनक से बुजुर्गों को देखता है और उसकी ऐनक खुद पर्दा और हिजाब है। सूफिया की तरह हवास को मुशाहिदा के जरिए पाक व साफ करना चाहिए। जब तेरे हवास पाक हो जाएंगे तू बुजुर्गों की हकीकत को समझ लेगा। देखना आंख का काम है, कान का नहीं। कान सुनने का माहिर है, नाक महबूब का चेहरा नहीं देख सकती। अगर तुम्हारी हिस्स टेढ़ी है तो वो सही काम नहीं करेगी। भैंगे की आंख एक चीज को दो करके दिखाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा, चूंकि तू मुजस्सिमे मकरो फरेब है, इसलिए तू मुझ में और अपने आप में फर्क नहीं कर सकता। तू भैंगा है, मुझे अपनी आंख से न देख, मुझे मेरी आंख से देख, फिर तुझे आलम गैब का मुशाहिदा होगा। मेरे इश्क में तुझे खुदा का इश्क नजर आएगा। जब तू जिस्म की मादियत से पाक हो जाएगा तो तुझे मालूम हो जाएगा कि कान और नाक भी आंख का काम करते हैं। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसके दूसरे हवास आंख का काम करते हैं। महज आंख की चर्बी को देखने की इल्लत न समझना चाहिए। ख्वाब में इंसान देखता है
اور اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ پری اور جن دیکھتے ہیں مگر ان کی آنکھوں میں یہ چربی نہیں ہے۔ آنکھ کی روشنی اور چربی میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ خدا نے اس میں یہ طاقت رکھی ہے تو اس کی قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی اور چیز میں دیکھنے کی طاقت رکھ دے۔ انسان خاکی اور جن ناری ہے، لیکن اب ان میں اور اس کی اصل میں کوئی نسبت نہیں ہے۔ قوم عاد پر جو ہوا مسلط ہوئی تھی وہ دیکھ دیکھ کر دشمنوں کو ہلاک کر رہی تھی۔ نمرود کی آگ کو وزارت حاصل تھی، اس لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہی تھی۔ دریائے نیل کو بھی وزارت حاصل تھی، اس لیے اس نے قبطیوں کو ڈبویا اور اسرائیلیوں کو نہ ڈبویا۔ پہاڑ میں بصارت تھی، تب ہی تو وہ پتھر حضرت داؤد علیہ السلام کو پہچان گئے تھے اور ان سے خواہش کی تھی کہ طالوت کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں ساتھ لے لو۔ زمین کو بصارت حاصل تھی، اسی لیے اس نے قارون کو نگل لیا۔ استون حنانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا، اس کی وجہ اس کی بینائی ہی تھی۔ سورہ زلزال میں بیان ہے، قیامت میں زمین سب راز ظاہر کر دے گی۔ اے فرعون، تجھ جیسے ظالم حاکم کے مقابلے کے لیے خدا کا مجھے بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کے علم میں یہ بات ہے کہ تیرے مرض کا علاج میں ہی ہوں۔ تو نے کئی بار خواب میں دیکھ لیا ہے کہ خدا نے تیرے مقابلے کے لیے مجھے منتخب کر لیا ہے۔ وہ خواب تیرے حال کے مطابق تھے اور تجھے یہ بتانے کے لیے تھے کہ اللہ تعالیٰ ناقابل علاج مرض کا علاج بھی فرما دیتا ہے، لیکن تو ان خوابوں کی غلط تعویلیں کر کے اندھا اور بہرا بنا رہا اور کہنے لگا کہ غفلت کی نیند میں ایسے خواب آیا کرتے ہیں۔ اتباع اور نجومی ان خوابوں کا صحیح مطلب سمجھ رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ تو ان کی بات نہیں مانے گا، ان پر عتاب نازل کرے گا، اس لیے وہ کہہ دیتے تھے کہ ہضم کی خرابی ان خوابوں کا سبب ہے۔ بادشاہوں کو اخلاق الہی اختیار کرنی چاہیے۔ خدا کا خلق یہ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، شیطان کا غصہ اس کی شفقت پر غالب ہے۔ بادشاہ میں بے موقع حلم کو بھی نہ ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کی بیوی اور متعلقین بگڑ جائیں۔ تو ایسا ظالم بادشاہ ہے کہ بے قصور لوگوں کا خون کرتا ہے۔ اب اللہ نے میری لاٹھی کے ذریعے تیرے سینگ کو توڑا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔